Hi guys, if you're new here, welcome to my channel. I'm Kavya Singh. I'm a national level speaker, debater, orator, anchor. I've spoken in front of the Honorable Prime Minister, the Vice President, different Chief Ministers, and I was invited as a youth icon in Rashtrapati Bhavan this year on Republic Day by the President of India. So I've done some pretty cool things and I want to use this channel to talk about it more and hopefully help all of you to achieve these things and more if this is something you want to do, or like tell you about my experiences. So in this video I thought I would talk about something that I forgot I used to struggle with. So before I start, I just have to say one thing. I tried finding like aesthetic places in my home and we are renovating, and so I'm not able to find anything. All I have is this unfinished wall that I started last summer and I still haven't completed. So just bear with me, just like ignore the background, just focus on me, and so the other day I was anchoring in this like event where I was interviewing some guests and stuff, and I was talking in English. और उसमें youth participants बहुत थे जो audience में बैठे थे. तो after the event, a lot of them came to me and they said that you're very confident, you're very fluent in English. But कहीं ना कहीं हमें hesitation होती है English बोलने में, या फिर we feel a little underconfident. So what can we do? So I said, you know what? Let's make a video on this. Because that moment it clicked to me. I was like, bhai, I used to struggle with the very same thing. Like, I remember, so I grew up in Greater Noida because my dad used to work in IT sector, which is in Noida, right? So we used to live here all our lives. मैं 6-7 grade तक यहाँ पे पढ़ी हूँ. उसके बाद we moved to Bangalore because my dad got shifted there. उनका ट्रांसफ़र हुआ. So we went there. और वहाँ पे चीज़ें बहुत ही कूल थी. Like it was a different new place, we were eating new food. But the problem was I was not able to talk a lot. I was not able to communicate with these new people because वहाँ पे या तो लोग कन्नड़ा बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, हिंदी कम लोग बोलते हैं. तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी इंग्लिश में और मुझे समझ में नहीं आ रहा था लाइक हाउ शुड आई कम्युनिकेट, राइट? लाइक आई वॉज नॉट फ्लुएंट. और नॉर्थ इंडिया में, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको पता होगा, वी कम्युनिकेट इन हिंदी अ लॉट. तो ऑल माई लाइफ आई वॉज कम्युनिकेटिंग इन हिंदी. और यहाँ पे भी मैं नाम के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी, बट ऑब्वियसली क्योंकि कल्चर ऐसा है तो हम सब हिंदी में बात करते थे, इंग्लिश में ज़्यादा लोग बात नहीं करते थे. तो वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे समझ में आया कि वहाँ पे बच्चे भी ना इंग्लिश में बात कर रहे थे. और जब मैंने अपने कज़न्स को बताया, जब मैंने अपने रिलेटिव्स को बताया, यहाँ के फ्रेंड्स को बताया, तो वो ऐसे बोलते थे कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, तुम ऐसे ही बोल रही हो, फालतू बोल रही हो. आई वाज लाइक नहीं, सच में होता है. लाइक दे स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम. क्योंकि हमें ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस होता है कि हमें इंग्लिश अच्छे से नहीं आती. तो मेरी मम्मी स्टार्टिंग से मतलब ऐसे बोलती थी दैट यार मैं तो केवी में पढ़ी हूँ, मुझे तो नहीं आती इंग्लिश ज़्यादा, बट तुम सीखो काव्या, तुम सीखो, ठीक है. तो मुझे भी ना कहीं वो अंडर कॉन्फिडेंस था. और वहाँ पे बच्चे ऐसे बहुत ख़राब नहीं थे, मतलब ऑब्वियसली जैसे हाई स्कूल में होते हैं, दे आर नॉट वेरी नाइस बट दे आर नॉट दैट बैड ऑल्सो, क्योंकि उस समय तक सोशल मीडिया आ चुका था एंड पीपल वर स्टिल अ लिटिल दे वर ट्राइंग टू बी इंक्लूसिव. तो उतने ज़्यादा दे वर नॉट बुलिंग मी, बट कम्युनिकेशन गैप था, ठीक है, कल्चर गैप मैं बोलूँगी था. और मुझे बहुत सी चीज़ें उनकी समझ में नहीं आती थी. Like a lot of references they used to give, a lot of things they used to talk about. So if they're talking about like a Hollywood show like Friends, मुझे समझ में नहीं आता था. If they're talking about Hollywood movies, मुझे समझ में नहीं आता था. It's like hey, did you watch that episode of Friends yesterday? Oh, I loved what Rachel was wearing. अब मुझे नहीं पता रेचल कौन है, अब मुझे नहीं पता वो क्या पहन रही थी और वो क्यों अच्छा था, ठीक है. अब मैं रिसर्च कर रही हूँ घर पे जाके कि क्या होता है फ्रेंड्स में, क्या होता है, ठीक है. फिर मैं फ्रेंड्स देख रही हूँ और मुझे आधी चीज़ें उसमें भी समझ में नहीं आ रही हैं क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, मुझे आधी चीज़ें समझ नहीं आ रही. मुझे अच्छे से याद है स्टार्टिंग में एकदम जब मैं गई थी बैंगलोर फ्रेश, तब वहाँ पे ना एक लड़की ने ऐसे बोला था, गॉड आई एम फीलिंग सो जॉबलेस टुडे. एंड मैं ऐसे सोच रही हूँ अपने दिमाग में कि यार शी इज़ नॉट सपोज टू हैव अ जॉब, लाइक वाई इज़ शी फीलिंग अनएम्प्लॉयड, या शी इज़ जस्ट इन 8th grade, like why is she feeling like that? And
बाद में मुझे पता चला जॉबलेस का मतलब ऐसा होता है कि आई एम फीलिंग आइडल, या फिर मेरे पास कुछ करने को नहीं है, स्टफ लाइक दैट। तो मैं मतलब चीज़ें समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ये टीनेज वाला फेज़ है, तो आपको वैसे ही फिट इन करने का बहुत ऐसा दिली तमन्ना होती है कि मुझे फिट इन करना है, मुझे फिट इन करना है, और आप कर नहीं पा रहे हो। तो कहीं ना आई वॉज लाइक गोइंग थ्रू दिस टर्मोयल, इनर टर्मोयल, एंड आई वॉज लाइक भाई आई वॉन्ट टू सो बैडली अंडरस्टैंड दैट वॉट दे आर सेइंग। एंड उस दिन मुझे याद आया, हमारी ना DPS ग्रेटर नोएडा में एक बार असेंबली हो रही थी, तो मैं 2nd या 3rd ग्रेड में थी, और हमारी ना प्रिंसिपल ऐसे स्पीच देती है ना, तो उस स्पीच में बोलती है कि यू ऑल शुड वॉच कॉफ़ी विद करण। So I was like, why should you watch Coffee with Karan? Like, and this academic person is telling us to watch Coffee with Karan, which is basically entertainment gossip. Like, why should you? So I told my dad, I was like, आपको पता है पापा आज मेरे प्रिंसिपल ने क्या बोला? She was like, watch Coffee with Karan. So he was like, yeah, I mean entertainment में तुम्हें देखना चाहिए, क्योंकि हर समय तुम न्यूज़ नहीं देख सकती हो, हर समय तुम किताब नहीं पढ़ सकती हो, बट जब तुम एंटरटेनमेंट का कुछ खोज रही हो, सो यू शुड वॉच, व्हाई नॉट, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। तो मुझे उस दिन ना थोड़ा ऐसा लगा कि मेरे पापा ने मेरी साइड नहीं ली, बट जब मैं बैंगलोर गई ना तब मुझे समझ में आया ही वॉज एक्चुअली राइट। सो वॉट आई स्टार्टेड डूइंग वॉज आई स्टार्टेड वॉचिंग दी शोज़, क्योंकि अब मुझे समझना है कि वो क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट, तो मैं उस लिए शोज़ देखना शुरू करती हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या बोल रहे, एक तो उनकी स्पीड बहुत तेज़ है, दूसरा वो बोल क्या रहे हैं, लाइक व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, तो मुझे बहुत से कॉन्सेप्ट्स ही नहीं समझ में आ रहे हैं। अगर वो कोई कैपिटलिज्म का जोक है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे कैपिटलिज्म पता ही नहीं है कि क्या होता है, ठीक है। अगर वो कोई सेक्सिस्ट जोक कर रहे हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो फेमिनिस्ट बोल रहे हैं किसी को तो मुझे नहीं समझ में आ रहा व्हाट्स अ फेमिनिस्ट। तो ये सब आइडियाज़ ना मुझे सीखने में थोड़ा टाइम लगा, और मैंने क्या किया ना, मैं शोज़ तो देखती ही थी, मैंने मूवीज़ देखना शुरू किया, मैंने इंटरव्यूज़ देखना शुरू किया, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखनी शुरू की, मैं गाने सुनती थी, इंग्लिश गाने बहुत ही बेसिक, और अब तो मैं सुनती भी नहीं हूँ, लाइक जस्टिन बीबर एंड लाइक टेलर स्विफ्ट एंड ऑल दीज पीपल आई यूज्ड टू लिसन टू। और उससे हुआ क्या ना, लेकिन कि मेरी सबकॉन्शियस मेमोरी में वो इंग्लिश लैंग्वेज, कॉन्वर्सेशनल जो इंग्लिश होती है वो बैठती गई। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, फ्लुएंसी कैसी होती है, हाउ डज करेक्ट इंग्लिश साउंड, वो मेरे सबकॉन्शियस में बैठता गया। तो वो धीरे धीरे कब मैं फ्लुएंट हो गई ना मुझे पता ही नहीं चला, लाइक दैट सीन इन इंग्लिश जहाँ पे वो इनिशियली स्ट्रगल करती है, बट धीरे 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 कब वो फ्लुएंटली एक कॉफ़ी का ऑर्डर दे देती है उसे पता भी नहीं चलता है, राइट। तो मेरे साथ भी वैसे हुआ था। मुझे अचानक से एक दिन रियलाइज़ हो, मेरी मम्मी ने बोला कि काव्या तुम फ्लुएंट हो गई हो, लाइक योर इंग्लिश हैज़ बिकम वेरी गुड, एंड आई वाज लाइक वाओ, आई डिडंट इवन रियलाइज व्हेन दैट हैपेंड, बट या दैट्स व्हाट हैपेंस। So my advice to you, and yeah, one friend of mine, like one of the best friends that I had at the time, she was a big reader, so she used to read a lot of like different novels and stuff. तो उसने ना मुझे हैरी पॉटर से इंट्रोड्यूस किया, उसने मुझे पर्सी जैक्सन बताया, ट्वाइलाइट हमने पढ़ी साथ में। अब मैं नहीं बोलूँगी कि ये बुक से आपका कोई बहुत एकेडमिक ग्रोथ होगा या फिर आपका बहुत कोई फ़ायदा होगा ऑन पेपर, बट क्योंकि आप एंटरटेनमेंट के लिए जो चीज़ें करते हो, जो रिलैक्स करने के लिए चीज़ें करते हो, उसमें आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर गोल्स को अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। So that is what I did, and that is why this process felt very effortless and very smooth. तो over the course of 1 year जब मैं गई वहाँ पे, तो उसके बाद 1 साल मुझे लगा, और 1 साल के बाद मैं comfortable हो गई थी, मतलब फिर मुझे चीज़ें समझ में आने लगी थी, then I got comfortable, and yeah, that's how I learned English. हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को एडवाइस दूँगी कि क्या उनको करना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, तो उन्हें ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा they should listen to like these artists, thinkers, philosophers, speakers who speak in English primarily. प्रेडोमिनेंटली जो इंग्लिश में बात करते हैं उनको सुनो, जैसे जो रोगन का पॉडकास्ट है आप वो देखो, यू कैन लिसन टू लाइक देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ पॉडकास्ट अवेलेबल टुडे। आपको जिस जॉनरा में चाहिए आप उसमें खोज सकते हो, आपको जिस टाइप की चीज़ें पसंद आती है आप उसमें खोज सकते हो, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो। तो यू हैव टू इमर्स योर सेल्फ in a lot of these ideas, in a lot of these
documentaries. You have to immerse yourself in this world, and I think that will make it very effortless for you to learn English. Tell me in the comments, tell me about your experience, and I will see you in the next one. Till then, take care, be happy, stay confident. Bye bye.